ناظرین آداب، اردو خبروں کے اس بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے ایک نظر آج کی سرخیوں پر۔ بھارت کا جدت کاری اور سب کی شمولیت کا سفر ڈیجیٹل کایا پلٹ پر مشتمل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مساوی ترقی کو یقینی بنانے اور سماجی اصلاحات میں نوجوانوں کا رول کلیدی اہمیت کا حامل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ جموں کشمیر میں قائم پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ کو مرکزی سرکار نے دیا دہشت گرد تنظیم قرار، اور بھارت انتہائی رفتار کے ساتھ کر رہا ہے ترقی کے منازل طے، نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ۔ خبریں تفصیل سے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے سرکار کو اس قابل بنا دیا ہے کہ بٹن دباتے ہی ملک کے کسی بھی دور افتادہ علاقے تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ بات نئی دلی میں 2022 کے لیے ڈیجیٹل انڈیا ایوارڈ عطا کرتے ہوئے ایک اجتماع سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا جدت کاری کا اور سب کی شمولیت کا سفر ڈیجیٹل کایا پلٹ پر مشتمل ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ معاشرے کے پچھڑے اور پسماندہ طبقوں کی شمولیت کو یقینی بنا کر بھارت ایک صحیح مثال قائم کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ نے یہ بھی کہا کہ ڈیجیٹل جدت کاری کا اصل مقصد سماجی انصاف ہونا چاہیے۔ واضح ہے کہ ڈیجیٹل انڈیا ایوارڈ کا مقصد ڈیجیٹل انڈیا کے مقاصد کی تکمیل کے لیے نہ صرف سرکاری کمپنیوں بلکہ سٹارٹ اپس اور بنیادی سطح کے ڈیجیٹل اقدامات کو بھی تحریک دینا ہے۔ سرکار نے ڈیجیٹل اعتبار سے معاشرے کو بااختیار بنانے اور جانکاری پر مبنی معیشت کی خاطر بھارت کی کایا پلٹ کے لیے ڈیجیٹل انڈیا پروگرام شروع کیا ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ملک میں دیگر اہم شعبوں کی طرح ہی تہذیب و تمدن کو فروغ دینے کی طرف خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ ایل جی نے کل جموں میں سنگیت ناٹک اکیڈمی کے اہتمام سے منعقدہ امرت یوا کلاتسو فیسٹیول کی افتتاحی تقریب پر ان خیالات کا اظہار کیا۔ یہ فیسٹیول ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر منایا جا رہا ہے۔ اس فیسٹیول میں ملک کے مختلف حصوں سے ابھرتے ہوئے فنکار حصہ لے رہے ہیں۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اس فیسٹیول کی بدولت ملک کی ثقافت اور تمدن کو فروغ ملے گا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ سماجی اصلاحات اور ترقی کی رفتار بنائے رکھنے میں فن اور تہذیب و تمدن کا کلیدی رول ہے۔ موصوف نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ نئی نسل کو اپنی ثقافت اور تمدن کے حوالے سے پوری طرح واقفیت ہو۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ 21ویں صدی میں کسی بھی مثبت تبدیلی کے لیے نوجوان ایک اہم طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدی کے دوران مساوی ترقی اور سماجی اصلاحات کے لیے نوجوانوں کا کلیدی رول ہوگا۔ ایل جی نے کہا کہ ملک کے تہذیب و تمدن کے تحفظ اور ایک بھارت شریشٹھ بھارت کے تحت جذبے کو بنائے رکھنے کی اہم ذمہ داری بھی نوجوانوں پر عائد ہوتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جی ایم سی جموں کا دورہ کر کے راجوری ملیٹنٹ حملے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت اور مزاج پرسی کی۔ اس موقع پر پرنسپل ڈاکٹر ساشی سدھان اور دیگر سینئر ڈاکٹران نے سانوی شرما، پرنس شرما، روہت شرما اور پاون کمار نامی ان زخمی افراد کی جسمانی حالت اور انہیں دستیاب رکھی جا رہی طبی سہولیات کے حوالے سے ایل جی کو جانکاری فراہم کی۔ لیفٹیننٹ گورنر ان زخمی کے کنبے کے افراد کے ساتھ بھی ملے اور انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن مدد کا انہیں یقین دلایا۔ ایل جی نے اسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ ان زخمیوں کے لیے بہتر سے بہتر طبی نگہداشت کو یقینی بنایا جائے تاکہ وہ جلد از جلد پوری طرح سے صحت یاب ہوں۔ مزید خبروں سے پہلے یہ وقفہ۔ KYC اپڈیٹ کرنا ہے، نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا۔ ہوشیار 2.5 کروڑ کا انعام مجھے۔ دیکھیے انجانے کالز، فرضی ای میلز، لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن، OTP، پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیں، چوکنے رہیں۔ ڈاکٹر سندھیا پریچا چیئر 20 انڈیا جو کہ جنسی مساوات پر توجہ مرکوز کرنے کے حوالے سے G20 آفیشل انگیجمنٹ گروپ ہے نے آج راج بھون جموں میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے ساتھ ملاقات کی۔ اس دوران ڈاکٹر پریچا نے لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ W20 کے ویژن اور اہداف کے حوالے سے خیالات کا تبادلہ کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے خواتین کی ترقی اور مساوات پر مبنی سماج کے لیے UT انتظامیہ کی طرف سے W20 کی کاوشوں کو ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔ مرکز جموں کشمیر میں قائم پیپلز اینٹی فیسسٹ فرنٹ PAFF کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے روک تھام کے ایکٹ UAPA کے تحت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ PAFF 2019 میں ممنوع دہشت گرد گروپ جیش محمد کے درپردہ گروپ کے طور ابھرا تھا۔ ایک نوٹیفکیشن میں وزارت داخلہ نے کہا کہ PAFF بھارتی سلامتی فورسز، سیاسی لیڈروں اور بیرون ریاستوں سے تعلق رکھنے والے جموں کشمیر میں کام کرنے والے افراد کو مسلسل دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ وزارت کے مطابق PAFF دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر جموں کشمیر اور ملک کے اہم شہروں میں تشدد آمیز اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے عملی طور پر
और सोशल मीडिया पर साजिशें रचने में इंतहाई सरगर्मी के साथ मुलव्विस है। इससे पहले मरकज ने जुमेरात को एक और तंजीम TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट पर पाबंदी आयद की थी। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज कुलगाम जिले में ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की मजीद जायदाद को मुंसलिक कर दिया है। जराये के मुताबिक एजेंसी ने एक कार्रवाई घंटागर कुलगाम के नजदीक मेन टाउन में अमल में लाई, जिस दौरान 4 कनाल 3 मरला अराजी को मुंसलिक किया गया। एक कार्रवाई UAP एक्ट के सेक्शन 8 के तहत अमल में लाई गई है। ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के डिवीजन ऑफ वेजिटेबल साइंस के एहतमाम से वर्मी कंपोजिट टेक्नोलॉजी मौजू पर 8 रोजा सेमिनार आज शुरू हुआ। इब्तिदाई तकरीब पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने वर्कशॉप का इनेकाद करने के लिए मुंतजमीन की सताइश की और ये ख्वाहिश जाहिर की कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के वर्कशॉप मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले मंदोबैन इस वर्कशॉप में शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर वर्कशॉप की मुंतजिमा डॉक्टर उमैया मसूदी ने वर्कशॉप के अगराज और मकासद बयान किए, जबकि वर्कशॉप से जुड़े एक किताबचे को भी जारी किया गया। ये 8 दिन का हाई एंड वर्कशॉप है जिसमें एप्लीकेशंस पूरे इंडिया से आई और हमने 25 पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया है जो कश्मीर के भी हैं एंड और वो बाकी स्टेट्स ऑफ इंडिया वहाँ से भी हैं। इनको हम 8 दिन तक ट्रेन करेंगे, उनमें वो स्किल इम्पार्ट करेंगे, उनको वो नॉलेज देंगे और इसका मुद्दा व मकसद यही है कि रिसर्च प्रोडक्टिविटी जो प्रॉमिसिंग MSc और PhD स्टूडेंट्स हैं उनकी रिसर्च प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाए, बढ़ाया जाए। साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 7वीं बरसी के सिलसिले में आज बीजबिहाड़ा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजबिहाड़ा का दौरा किया और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की ईसाल सवाब के लिए फातिह खानी की। इस मौके पर अब्दुर्रहमान वीरी, सरताज मदनी, महबूब बेग, नईम अख्तर और पार्टी के दीगर सीनियर लीडरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर GAB ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा उन अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए शुरू की गई है जो मुल्क के अवाम को मजहबी, इलाकाई और लिसानी बुनियादों पर मुनक़सिम करना चाहते हैं। कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रवां माह की 20 तारीख को यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है और लोगों को बढ़ चढ़ कर इसमें शमूलियत करनी चाहिए। मौसूद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह अहल है कि यह BJP समेत मनफी सियासत करने वाली किसी भी पार्टी का मुअस्सर तरीके से मुकाबला कर सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो कांग्रेस का पूरी तरह साथ दे, क्योंकि बकौल उनके यही पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के इज्जत और वकार को बरकरार रखने और यहाँ की अवाम की तर्ज हयात को बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम कर सकती है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उन्होंने हमेशा कोशिश की है और मुस्तकबिल में भी उनकी यही कोशिश रहेगी कि यहाँ के लोग इज्जत वकार की जिंदगी गुजारे और खित्ते अर्ज तरक्की की रफ्तार में मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ आगे बढ़े। आज श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर बानिहाल के मारूफ नौजवान लीडर मुनीर अहमद भट्ट और कई दीगर लोगों ने DAP में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के कई सीनियर लीडर भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने कहा कि शहरी आबादी को कई तरह के मुश्किलात का सामना है। मौसूफ ने आज शहर खास के आबी कारपोरा, आबी नौपोरा, कोहनखन और डलझील के अंदरूनी इलाकों का दौरा करके लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की। मौसूफ ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत हुकूमत शहरी श्रीनगर में जो इकदाम कर रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए किए जा रहे हैं, जबकि शहरी आबादी को बिजली, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सहूलियात भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐलानात के बजाय अमली इकदाम करने चाहिए ताकि आम लोगों को राहत पहुंचे। J&K पीस फोरम के सदर सतीश मालदार ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कश्मीरी पंडित गुज़श्ता 3 दहाइयों से मसाइल और मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और सरकार उनकी बाज़ाबतकारी यकीनी बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी मुल्क के दीगर शहरियों की तरह ही हुब्बुल वतन है और चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वादी वापस लौटें। उन्होंने कश्मीरी पंडितों की बाज़ाबतकारी और माइग्रेट मुलाजमीन के लिए रिहायशी सहूलियात फराहम करने का भी मुतालबा किया। LCMA के बिल्डिंग परमिशन अथॉरिटी की 126वीं मीटिंग आज मुनाकिद हुई। वाइस चेयरमैन की सदारत में मुनाकिदा इस मीटिंग में अथॉरिटी के मेंबरान ने शिरकत की और इस दौरान मुख्तलिफ मुतल्लिका अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दरिया असना LCMA के इन्फोर्समेंट विंग ने आज बागवांपुरा, लाल बाजार, फ्रेंड्स कॉलोनी, शालीमार और बॉटनिकल गार्डन इलाकों में नाजायज तामीरात और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई। इस कार्रवाई की निगरानी विंग के इन्फोर्समेंट
ऑफिसरान ने की। स्किम्स श्रीनगर में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और फार्माकोलॉजी वगैरह शोबों में मुख्तलिफ जुमरों के तहत सीनियर रेजिडेंट्स की कुछ असामियां पुर करनी मतलूब हैं। इस सिलसिले में दरख्वास्त जमा करने की आखिरी तारीख 14 जनवरी से फिर 3 बजे तक है, जबकि उम्मीदवारों का इंटरव्यू 18 जनवरी को सुबह 11 बजे लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात स्किम्स वेबसाइट www.skimsmc.edu.in पर दस्तयाब हैं। ऑल इंडिया रेडियो के शोबे खबर और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर से वाबस्ता सुहेल अहमद भट्ट की वालिदा आज सुबह इंतकाल कर गई। मरहूमों का तेलबल में उनकी आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द लहद किया गया। इस सिलसिले में ताज़ियत सिर्फ 3 दिन तक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि अहम पॉलिसियों से मुतल्लिक मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करने और भारत को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए टीम के जज्बे को मुस्तहकम करने की खातिर चीफ सेक्रेटरी की दूसरी कौमी कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम फोरम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल दूसरे रोज इस कॉन्फ्रेंस की सदारत के बाद इन ख्यालात का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत इंतहाई रफ्तार के साथ तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। उन्होंने आज सुबह नई दिल्ली में एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2023 का इफ्तिताह करते हुए कहा कि मुल्क अब मौक़े और सरमायाकारी का एक आलमी मरकज बन गया है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं मईशत है। नायब सदर ने इस बात का तज़किरा भी किया कि भारत ने दवाओं, वैक्सीन और आलात की तैयारी और फरोग में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोविड वबा के चैलेंज को एक मौके में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी ने बरसों से तरबियत देने वाले और नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने वाले हकीकी मानों में दरख्शां और मुतनवा काडर नौजवान तैयार किए हैं, जो जिंदगी के सभी शोबों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। कई जगहों पर बर्फानी तोदे के गिराने की वजह से गुरेज बांडीपुरा सड़क ट्रैफिक की नकलो हरकत के लिए बंद है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ हुक्काम ने कहा है कि मौसम के हवाले से ताज़ा पेशगोई के मद्देनजर शाहरा पर कल भी ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल रहेगी। BRO के एक एहलकार ने कहा कि शाहरा पर दरमांदा गाड़ियों को महफूज मकामात की तरफ रवाना किया गया है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।